Hello everyone, I am Dr. Rashmi Pawar and I am here to help you out in understanding economics in a better way. I am already there in the teaching line since last 28 years. So let us begin. There are two books in your CBSE 12th class economics. There is one that is Indian economic development and the second one is macroeconomics. So most of the time the children face problem in understanding Indian economic development because it has more of learning part. So let us begin the first chapter, India on the eve of independence. Before knowing the India's condition on the eve of independence, we should know that the glory of India before the arrival of the Britishers. When the Britishers invaded India, before that India was a golden bird and its exports were worldwide famous. Many of the goods like handicraft, silk, cotton, jute and this precious stones etc. were demanded all over the world and India was carrying a big percentage of the total foreign trade. But when Britishers came to India, they systematically deindustrialized our Indian industries and Indian agriculture was being exploited. So in this chapter we are going to study, you can see here, that is what was the status of agriculture when we were inherited our country back to and then state of industry, that is what was the condition of industries, what was the condition of foreign trade, then demographic structure, occupational structure and then the last infrastructure. So let us begin with the first. So let us begin with India, what was the condition of Indian agriculture when we were inherited Indian economy. So if you can see here that agriculture, all of you know that India is an agrarian economy. Majority of the people today also are engaged in agriculture sector, but that time nearly about 85% of the people directly or indirectly dependent upon agriculture. And that was the major part of the country. And if we talk about what was the condition, so we can understand that the condition of India was first thing was there that the production and productivity of Indian agriculture was very low. Now let us understand what is productivity. Productivity is the capacity of land or the labor. So how do you find out this? That is, productivity is equal to total production divided by the total land employed or total labor employed. So we can say that productivity of land is how much of the production was there per hectare of land. So if we compare it with the developed countries, it was too low, nearly 5 times lower than the developed nations. So when we were inherited, the first point was that the production and productivity of the Indian agriculture or land and labor was very low. Then the second point was there, that is Britishers, let me explain you in Hindi also. So जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या करा था, एक ज़मींदारी सिस्टम लगा रखा था. इस ज़मींदारी सिस्टम में ये होता था कि ज़मींदार्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फार्मर्स से एग्जॉर्बिटेंट टैक्सेस और रेवेन्यू लेने के लिए अपॉइंट कर रखा था. और अगर ये ज़मींदार ऑन द स्पेसिफाइड डेट अपना रेवेन्यू नहीं जमा करते तो इनका टाइटल जो था वो ले लिया जाता था. तो हाउ कैन वी राइट दिस? दैट इज़ द ज़मींदारी सिस्टम. इट इज़ ऑल्सो नोन एज लैंड सेटलमेंट सिस्टम. सो एट दैट टाइम ज़मींदार्स वर गिवन राइट्स to take what? Revenue. Revenue from whom? From the farmers, and then they were giving it to the Britishers. So this revenue was too high, and many a times if you see, if you Google, you know that nowadays you can find out all the things. So that time if you see 90s, 1900 AD, 11, 21, 25, there were famines, and because of that many of the crops were failed. But in spite of that, there was huge revenue being collected from the farmers, and this created the misery to the farmers. So these were the condition of Indian agriculture. These zamindari system, it was a curse to the Indian economy. And the third thing which was being done, that is forced commercialization. So if you see the forced commercialization, that is the farmers were forced to grow the commercial crops. All of you know that that time in Britain there was industrial revolution going on, and they required more and more of raw material.
है ना। एंड जितना ज़्यादा रॉ मटेरियल उनको चाहिए रहता था वो हमारी कंट्री से सारा का सारा वहाँ पर एक्सपोर्ट करते थे, वो कॉटन हो या जूट हो। आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा चंपारण मूवमेंट, है ना। इंडिगो फोर्सफुली मतलब ग्रो करवाया जाता था। एंड ऑल ऑफ यू नो दैट कि जब इंडिगो को हम उगाते हैं तो बाय कंटिन्यूसली 2-3 साइकिल अगर इंडिगो उगाया जाता है तो जो हमारी लैंड है वो बैरन हो जाती है। पर ब्रिटिशर्स को ये चीज़ें चाहिए थी क्योंकि वहाँ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था, तो उनको बहुत सारा रॉ मटेरियल चाहिए था। तो उन्होंने इंडिया को टारगेट किया और इंडिया का सारा जो भी जितने भी फार्मर्स थे उनको मोटिवेट करके फोर्सफुली उनसे कमर्शियल क्रॉप्स उगवाई जाती थी। इसके रेपरकशन क्या हुए कि जब कमर्शियल क्रॉप उगाते थे तो फूड क्रॉप धीरे धीरे उनके पास प्रोडक्शन हमारे इंडिया में कम होता गया। अब फूड क्रॉप कम हो गई, कमर्शलाइजेशन इज़ गुड, लेकिन जब वो आप कमर्शियल क्रॉप को मार्केट में बेचते हैं तो जो फार्मर्स थे उनको प्रॉपर रिटर्न नहीं दिया जाता था। अगर वो फूड क्रॉप उगाते हैं तो वो कम से कम अपने घर पे अनाज तो खा सकते थे, लेकिन जब कमर्शियल क्रॉप उगाते हैं और मार्केट में उनको सही रिटर्न नहीं मिलता है तो धीरे धीरे क्या हो गया, दे वर नॉट इवन केपेबल टू बाय फूड फॉर देयर फैमिलीज। सो दिस वे द कंडीशन ऑफ फार्मर्स बिकम miserable. So these are the points which you have to write down what was the condition of Indian agriculture. Before that we should also know that Britishers has not made any effort to measure our national income. नेशनल इनकम या फिर पर कैपिटा आउटपुट, इस तरह के कोई एफर्ट्स ब्रिटिशर्स ने नहीं किए, लेकिन सम इंडियंस दे डिड नोटेबल वर्क इन द मेजरमेंट ऑफ द नेशनल इनकम एंड सम नेम्स आर स्पेसिफाइड देयर, दैट इज दादाभाई नौरोजी, विलियम डिगबॉय, फिंडले श्रीराज, वी के आर वी राव, आर.सी. देसाई। एंड इन सब में सबसे सिग्निफिकेंट रहा राउज एस्टीमेट विच वॉज सिग्निफिकेंट। अगर हम इनके एस्टीमेट के हिसाब से देखें तो हमारी इकोनॉमी एक स्टेगनेंट इकोनॉमी थी। इफ़ इट इज़ आस्क्ड दैट व्हाई इट वाज स्टेगनेंट इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी में अगर पर कैपिटा जीडीपी और जीडीपी बहुत ही कम रेट से बढ़ता है तो उसको स्टेगनेंट मतलब रेंगने वाली इकोनॉमी कहा जाता है। तो इफ़ यू सी द फिगर हियर दैट रियल आउटपुट ऑफ द कंट्री वाज लेस देन 2% coupled with 0.5 growth in per capita output. So per capita output only was increasing by 0.5%. So this was very meager, and these were the various reasons, various data which shows that Indian economy was, what was there? It was a backward economy, it was a stagnant economy. Is that clear? So now we are supposed to do the second sector, which is very prominent for any country to called as developed nation. इंडिया आज भी उतना डेवलप हालांकि नहीं हुआ है, आज भी हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर काफ़ी बैकवर्ड है, और इसीलिए ऑल ऑफ यू नो दैट मोदी गवर्नमेंट हैड स्टार्टेड वन स्कीम ऑल्सो मेक इन इंडिया, बट स्टिल द रिस्पॉन्स इज़ नॉट दैट मच गुड। इफ़ यू सी द डेवलप्ड नेशन, वहाँ पर सबसे ज़्यादा पीपल एंगेज होते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में, और वहाँ पर जीडीपी में आउटपुट कंट्रीब्यूशन भी सबसे ज़्यादा होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर का। लेकिन इंडिया में at the time of independence primary sector was prominent, but the GDP contribution was maximum from the service sector, and the same thing is happening right now also. Means India still needs a lot of things to be done to do on in the manufacturing industries in this area. A lot of work has to be done. Anyways, so what type of industry was industrial sector was inherited to us? So we can say that I already told you that हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ थी वो बहुत अच्छे से काम करती थी। हमारे काफ़ी सारे गुड्स, हमारे जो ढाका मुस्लिन क्लोथ है, हमारा सिल्क है, हमारा जूट है, हमारा कॉटन है, प्रेशियस स्टोन्स है, बहुत सारी चीज़ों का वर्ल्ड वाइड, आइवरी वर्क हुआ करता था तब, तो आइवरी वर्क का हैंडीक्राफ्ट गुड्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें वर्ल्ड वाइड डिमांड में थी। लेकिन धीरे धीरे वो क्या होती गई, ख़त्म। पर कैसे? दैट वॉज सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बाय द ब्रिटिशर्स। उन्होंने क्या किया, फर्स्ट दो चीज़ें होती है किसी कंट्री में, एक तो स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री और एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो हम इसको दो टुकड़ों में समझ के देखते हैं। दैट इज़ इवन द कंट्रीज वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज डिक्लाइन, नो कमर्शियल मॉडर्न इंडस्ट्रीज। सो दिस टू एरियाज वी विल टच। द फर्स्ट इज दैट इज़ द कोलैप्स ऑफ इंडियाज़ वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट्स। सो जितने भी हमारे इंडिया के हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ थी उनको सिस्टमैटिकली क्या किया गया, डी इंडस्ट्रियलाइज किया गया। अब कैसे किया गया कि जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ थी उसका बहुत ज़्यादा डिमांड था इंटरनेशनल मार्केट में, तो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी लगाई गई। व्हाट इज़ दिस? डिस्क्रिमिनेशन किया गया टैरिफ पॉलिसी में। जो भी इंडियन गुड्स एक्सपोर्ट होते थे लाइक हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल, तो सभी इंडियन गुड्स जो कि एक्सपोर्ट होते थे, फिनिश गुड्स, उन सब पे हाई टैक्सेस इम्पोज कर दिए गए। हुआ क्या? Consequently, in the international market, these goods become costly and slowly we lost the international demand.
अब सेकंड आता है हमारा डोमेस्टिक डिमांड। अब डोमेस्टिक डिमांड में क्या क्या चीज़ें थी, एक तो हमारे जो लोकल पीपल थे वो यूज़ करते थे, और प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, राजा महाराजा वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें पहनते थे आर्टिसन गुड्स वाली। तो धीरे धीरे प्रिंसली स्टेट्स कम हुए तो उससे डिमांड कम हो गया इंडियन आर्टिसन गुड्स का। और दूसरा उन्होंने क्या करा कि उन्होंने अपने जो फिनिश गुड्स थे ब्रिटेन से जो बन के आते थे उन पर टैक्स नहीं लगाया, तो वो गुड्स हमारे इंडियन मार्केट में सस्ते दामों पे उतर गए। हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज उनको सिस्टमैटिकली डी इंडस्ट्रियलाइज मैंने बताया, जैसे कि डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी से करा, बहुत हाई टैक्सेस इम्पोज कर दिए गए इंडियन गुड्स को, जो कि जब इंटरनेशनल मार्केट में गए तो कॉस्टली हो गए, और इसकी वजह से हमारा इंटरनेशनल डिमांड कम हो गया। कमिंग टू द डोमेस्टिक डिमांड बाय टू थिंग्स, वन जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे, ऑल दिस राजा महाराजा दे वर यूजिंग अ लॉट ऑफ आर्टिसन गुड्स, और महंगे स्टोन्स की चीज़ें बनी हुई पहनते थे, है ना, और उनको जैसे आर्टिसन वर्क का भी शौक था, उनके डिस्प्ले में बहुत आर्टिसन वर्क्स होते थे। तो धीरे धीरे प्रिंसली स्टेट्स के कम होने से वो डिमांड कम हुआ। दूसरा इन्होंने ये क्या किया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट वहाँ बना रही थी, हमारे यहाँ का रॉ कॉटन जूट ले जाकर वहाँ पर ब्रिटेन में मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी, और वहाँ से इंडिया में वो क्या कर रही थी, गुड्स एक्सपोर्ट कर रही थी। तो इंडिया का इंपोर्ट पे उन्होंने क्या कर दिया, फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन पे टैक्सेस नहीं लगाए या मीगर लगाए। तो अब उसकी वजह से वो गुड्स हमारे इंडियन मार्केट में क्या आ गए, बहुत ही सस्ते दामों पर अवेलेबल हो गए। तो हमारे जो गुड्स थे हैंडीक्राफ्ट गुड्स, और अदरवाइज़ वी कैन से हैंडमेड लूम जिसको बोलते हैं हैंडलूम, या फिर खादी, ये थोड़ा सा कोर्स होता है, और जो वहाँ से आता था कपड़ा वो पॉलिस्टर, शाइनी क्लोथ, मशीन मेड गुड्स हमेशा सस्ते पड़ते हैं एज़ कम्पेयर टू हैंडमेड गुड्स। तो वो गुड्स सस्ते दामों पे इंडिया में आ गए, और जिसकी वजह से इंडियंस ने भी क्या करा, खादी और ये छोड़कर जो फॉरेन गुड्स है, फॉरेन क्लोथ्स है, वो अपना लिए। एंड आपको पता होगा कि फिर गांधी जी ने जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन, उसके दौरान बोला था कि आप सब अपनी त्याग दो ये फॉरेन क्लोथिंग्स को, और फिर बोन फायर हुआ था, सब जगह कपड़े जलाए गए थे। तो ये बाद में हुआ, लेकिन उससे पहले क्या हुआ था, हमारा इंडियन मार्केट पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था। तो जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को ना इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड है, ना डोमेस्टिक में डिमांड है, और तीसरी बात क्या हुई कि जो रॉ मटेरियल वो लोग यूज़ करते थे, कॉटन, जूट, ये सब ब्रिटेन क्या करता था, हमारे इंडिया से इकट्ठा करके इट वॉज बिंग एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन, क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन रैपिडली चल रहा था, वहाँ वो कपड़ा बना के पूरे वर्ल्ड में बेच रहे थे। तो हमारे वाले जो इंडस्ट्रीज़ थी उनको रॉ मटेरियल के भी शॉर्टेज होने लगे। सो दिस सिस्टमैटिकली हमारा स्मॉल कॉटेज हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज कंप्लीटली र्यून एंड दे वर क्लोज्ड डाउन। क्लियर। अब हम आते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ पर। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ बहुत किसी भी कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, मशीन एंड टूल्स बनाने में बहुत ज़्यादा योगदान देती है। दे कंट्रीब्यूट अ लॉट। सो उस समय क्या करा उन लोगों ने कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट पे दे जस्ट इग्नोर्ड इट लाइक एनीथिंग। देयर वाज नो लार्ज स्केल इंडस्ट्री अदर देन वन, दैट वाज टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1907. Other than that, there was no large scale industry being developed by the Britishers. Merely no capital goods industry. What are the capital goods industries? ये वो गुड्स होते हैं जो कि मशीन टूल्स बनाते हैं। इस तरह की कोई इंडस्ट्री सेटअप नहीं की। लेकिन हाँ, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद इनके कुछ डिमांड्स बढ़ गए थे, प्रोडक्शन उनको और चाहिए था, तो भारत में सीमेंट इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्रीज, कुछ एक इंडस्ट्री सेटअप इन लोगों ने की। तो लाइकवाइज यू कैन से दैट द इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वॉज बीइंग ruined by the Britishers very badly by ruining the handicraft and small scale industries and giving no attention for the development of the large scale industries and modern industries. So this was there in the second, if you see here, it created wait a minute. So the collapse India's world famous handicraft. It also created a new demand in the Indian consumer market. The increasing imports of cheap machine made goods from Britain. So ऐसे आपके सब domestic goods की demand क्या होती गई, कम होती गई. There is a quick review. Discriminatory tariff policy of the state, disappearance of princely courts, which I explained you, competition from machine made products which was being imported from Britain, new patterns of demand which further contributed to this, introduction of railways in India which led to spread of market, है ना. Indian railways definitely इंट्रोड्यूस की गई ब्रिटिशर्स के द्वारा, पर उनका भी मेन मकसद क्या था कि वो जितने भी हमारे रूरल इंडिया है वहाँ से कॉटन, जूट, ये सब ट्रांसपोर्ट करके कहाँ पर कोस्टल एरियाज़ में पहुँचाकर ब्रिटेन में वो भेज सके. देन ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री एंड ओनली वन टाटा एंड इंडस्ट्री 1907 वॉज एस्टैब्लिश्ड. अच्छा, इसी समय पर इन्होंने क्या करा, 1869 में सुएज कैनाल भी
बनाई। और इस स्विस कैनाल का क्या फ़ायदा था कि उन्होंने अपना और ब्रिटेन का, इंडिया और ब्रिटेन का जो ट्रांसपोर्टेशन रूट था वो बहुत ही शॉर्ट हो गया। So there was a question in the board also. So Suez Canal was set up in 1869 and this made the route shorter between the Britain and Asia. And it gave three benefits to the Britain. First, they had the easy access to our markets, and it reduced the transportation cost. So that way India completely ruined our Indian industries. So the fall in supply of locally made goods created a demand. So you can see here, so India has been an important. Now coming to the third thing, if you see foreign trade. क्लियर? तो आपने दो चीज़ें कर ली अभी, एग्रीकल्चर कर लिया आपने, इंडस्ट्री कर लिया। अब हमारा तीसरा सेक्टर कौन सा आ गया? फॉरेन ट्रेड। अब फॉरेन ट्रेड जब भी हम पढ़ेंगे तो यू कैन सी हम इसको तीन पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पार्ट होगा कंपोजिशन, है ना। कंपोजिशन हमें क्या बताता है कि हम कौन से गुड्स इंपोर्ट और कौन से गुड्स एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है। दूसरा इसका होगा डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। डायरेक्शन में हम क्या करेंगे कि हम किसके तरफ, मतलब हमारा जो मेन ट्रेड था किसके साथ था, क्लियर। और फिर हम करेंगे वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड मतलब इंपोर्ट का वॉल्यूम ज़्यादा था या एक्सपोर्ट का वॉल्यूम ज़्यादा था। सो दिस वे फॉरेन ट्रेड इज बीइंग studied in three divisions. The first I told you, that is composition. Now what is the composition of trade? India became an exporter of primary products. हम क्या एक्सपोर्ट करने लगे? प्राइमरी प्रोडक्ट्स जो कि नॉट मैन्युफैक्चर्ड, ओके। सो रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिगो, जूट, ऑल दिस वी वर एक्सपोर्टिंग, है ना। एंड व्हाट वी वर इंपोर्टिंग? finished goods from the Britain. So machine made clothes, cotton, silk, woolen clothes, like so all this light machinery etc. we were exporting from Britain. So जब भी कोई कंट्री प्राइमरी गुड्स को एक्सपोर्ट करती है, इसका मतलब ये होता है कि वो कंट्री खुद मैन्युफैक्चर करने में सक्षम नहीं है। सो दिस शोज द बैकवर्डनेस ऑफ एनी ऑफ द कंट्री. So this composition was showing the backwardness of Indian economy, where they were exporting the primary products, raw material etc., raw goods, and importing the finished goods. Coming to the next, volume. And what was India's volume? Before that volume I will explain you the direction. So India's foreign generated वॉल्यूम में क्या हुआ, डायरेक्शन में क्या हुआ कि हमारा मेजर जो बिजनेस था, मेजर जो फॉरेन ट्रेड, बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिशर्स हम वर्ल्ड वाइड अपनी चीज़ें बेचा करते थे। बट जैसे ही ब्रिटिशर्स आए, हमारा मेजर फोकस ब्रिटेन ने क्या करा, हमारे रॉ मटेरियल अपने पास ले जाना, फिनिश गुड्स इंडिया वाज अ स्प्रॉलिंग मार्केट, तो यहाँ पर अपने गुड्स बेचते थे। तो हमारा 50% ऑफ आवर trade was confined to the Britain, and then we had some trade relations with Ceylon also, and then we had some trade relations with Persia, Ceylon and China, and remaining all this our business was there with Britain. So 50% of India's foreign trade was confined to the Britain. That was the direction of the trade if we talk about. And the next is the volume of trade. Volume I told you, that is how much of import and how much was export being done. अभी आप देखेंगे तो इंडियन इकोनॉमी इन द लास्ट सो मेनी ईयर्स ओनली वंस इट वाज द वी हैड द सरप्लस BOT मीन्स बैलेंस ऑफ ट्रेड। वो क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड। एंड सरप्लस जब हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट कम है, एंड डेफिसिट जब हमारा इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है। तो अगर आप देखोगे ब्रिटेन के टाइम जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तब क्या था, हमारा बहुत सारा रॉ मटेरियल हमारा क्या किया गया था, एक्सपोर्ट किया जाता था। तो जिस वजह से हमारा क्या प्रॉब्लम आया, दूसरा प्रॉब्लम में नहीं आ गया कि उस समय हमारा जो फॉरेन ट्रेड था वो सरप्लस था, मतलब एक्सपोर्ट्स वर मोर, इंपोर्ट्स वर। पर क्या ये सरप्लस का जो भी फ़ायदा था इंडियन इकोनॉमी यूज़ कर रही थी? नहीं, इट वॉज बींग यूज नेवर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर इकोनॉमी, इट वॉज बींग यूज टू मीट आउट देयर ओन हाई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर अंडर द ब्रिटिश रूल. You know, after when we got independence, what do you understand by the word demography? I hope many of you must be knowing, but when I ask my children that what is demography, so it is difficult to know about. So let me tell you, demography is the study which tells us about the status of population of a country.
So it is also one of the branch of economics. Further, if you go for the higher studies, then demographic study is also one of the branch. So what was the condition of Indian population at the time of independence? How would you judge a population? You would judge by their literacy level, by their health, is it, and death rate, birth rate, okay, is it? So likewise, the demographic structure, if we study, it was also vulnerable at the time of independence. अगर हम बोलें कि आप गेस करिए कि व्हाट कुड बी द एवरेज लाइफ एन इंडियन वॉज लिविंग एट दैट टाइम विच इज़ नोन एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो आपका जवाब थोड़ा हो सकता है 50 साल 60 साल, बिकॉज राइट नाउ इट इज़ 69 years. बट shockingly, if we say that what was the life expectancy of Indians at the time of independence, it was merely 32 years. On an average, one Indian was living at only 32 years. Why it was so? Because of poor health infrastructure. Many villages, when they were having the widespread of any disease, or most of the people died because of lack of proper transport facilities to reach the medicine, or otherwise lack of poor health access. So first, if we talk about the demographic structure of India, so let us see the first Britishers in India collected the details about the population through the census first time in 1881. So you know that what is that population census in India also every 10 years it is taking place. So at that time it started in 1881. And there are three stages. If we talk about demographic transition, I told you what is demography. Demography is the study about the status of population. तो पूरी अगर हम बात करें तो जो ट्रांजिशंस हैं तीन पार्ट में हम कर सकते हैं ट्रांजिशंस. फर्स्ट पार्ट इट इज़ व्हेन द पॉपुलेशन इंक्रीज एंड समटाइम डिक्रीज. किसी एक डिकेड में बढ़ गई, किसी एक डिकेड में कम हो गई. व्हाट इज़ डिकेड? एवरी 10 year, है ना. तो 1921 से पहले देयर वाज फ्लक्चुएशन इन द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन. किसी डिकेड में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बढ़ जाता था, किसी डिकेड में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट घट जाता था. तो 1921 से पहले क्या था? देयर वाज फ्लक्चुएशन इन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट. बर्थ रेट एंड डेथ रेट वाज वेरी हाई, है ना. So that way we can say that the first stage was before 1921. There was fluctuation in the growth rate of population, and that therefore the year 1921 is known as the year of Great Divide. Why it is told as year of Great Divide? Because before 1921 the population was stagnant, or otherwise we can say fluctuant. मीन्स कभी एक डिकेड में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बढ़ता था, कभी घटता था. लेकिन 1921 के बाद कंटिन्यूसली इंडिया की पॉपुलेशन क्या होती गई? बढ़ती गई, बढ़ती गई. सो देन देयरफॉर इट इज़ नोन एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड. सेकेंड स्टेज ऑफ ट्रांजिशन बिगेन आफ्टर 1921 known as the year of great divide. Under it the rate of growth of population consistently rise. Is that clear? So stage 1. स्टेज 2 होता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का, जिसमें क्या होता है कि धीरे धीरे हम लोग डेथ रेट पे कंट्रोल कर लेते हैं. जैसे जैसे हेल्थ एक्सेस बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्या होता जाता है, हम लोग डेथ रेट कम करने में की कोशिश करते हैं और हो भी जाता है. यू नो, इफ़ यू गिव अ गुड हेल्थ फैसिलिटीज़ देन डेफिनेटली इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वुड बी कंट्रोल, मोर्टेलिटी रेट वुड बी कंट्रोल एंड डेथ रेट डेफिनेटली इट वुड बी कंट्रोल. लेकिन बर्थ रेट जब कंट्रोल नहीं होता है तो कंटिन्यूसली पॉपुलेशन बहुत फास्ट रेट से क्या होने लग जाती है? बढ़ने लग जाती है. ये इंडिया के साथ भी हुआ. एंड वंस देयर वाज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. सो इंडिया इज़ नाउ, अभी राइट नाउ ऑल्सो वी आर रनिंग इन द सेकेंड स्टेज. नाउ व्हाट इज़ द थर्ड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन? इन द थर्ड स्टेज व्हाट हैपन्स? इन द थर्ड स्टेज बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर अंडर कंट्रोल, है ना. सेकेंड में क्या था? डेथ रेट तो कंट्रोल कर लिया पर बर्थ रेट पे कोई कंट्रोल ही नहीं हुआ. तो पॉपुलेशन मरने कम हो गए और नई जनरेशन, नए बच्चे ऐड होते गए. लेकिन थर्ड स्टेज में देर इज़ हाई रेट ऑफ एजुकेशन एंड पीपल स्टार्ट कंट्रोलिंग द बर्थ एंड देयरफॉर the population is again under control. So if we talk about demographic transition, there are three stages: stage 1, stage 2, stage 3. Stage 1, both birth rate, death rate are high, so population under control or fluctuating. Second stage, death rate is controlled but the birth rate is high, so population is increasing at alarming rates. And the third stage, when birth rate is also controlled, death rate is also controlled, and in India yet it has to, we have to reach that third stage. So that is a demographic transition in detail.
Yes. So what was the condition of demography of India? I told you if we want to know about the demography, we have to study about various parameters by which we understand the status of population. First parameter is death rate and birth rate. So both birth rate and death rate was very high at the time of independence. 44 per thousand was taking birth and 40 per thousand was dying. You know, there was only gap of 4, है ना? So that was there. Second was there, that is life expectancy. As I already told you that life expectancy is how much on an average an Indian live. So that time it was only 32 years. Now it is 69 years. Now the third thing is their infant mortality rate, means just born baby within the year of 1 are known as infant and the mortality rate is the death rate. तो जो 1 साल के अंदर के बच्चे थे उनकी जो डेथ रेट थी वो भी उस वक्त बहुत ज़्यादा थी. It was 218 per thousand. Is it? So it was very high. Today also it is high. It is 30 per thousand, which is again it should come down as compared to the developed nation. Then coming to the next, that is literacy rate. So literacy rate was very low. हमारे इंडिया की सिर्फ 16% population literate थी and miserably women population was only 7% literate. So this was the overall condition of demography of India when we got the independence. Further, if we take about that, public health facilities were either unavailable to large chunk of population or were highly inadequate, and therefore I told you birth rate was high, death rate was high, life expectancy was low, and water and airborne diseases were rampant at that time of independence. The next topic if we take is occupational structure. Now what do you understand by occupational structure? Many times it happens that we understand okay, but if it comes that define occupational structure, we don't have words to write. We understand yes, कितने लोग प्राइमरी में कितने सेकेंडरी में ऐसा कुछ है, लेकिन आपको लिखना आना चाहिए. दैट इज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इज टेल्स अस अबाउट द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन्वॉल्व इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर ऑफ अ country. So let us understand that how many people were involved in primary, how many were in secondary and how many were in tertiary sector. So if you see here that I told you already that India is an agrarian economy and majority of the people were there in the primary sector. So if we talk about, then 70 to 75% of India's population was in the primary sector, and coming to the secondary sector it was only 10% of India's population were engaged. I told you that manufacturing and industrial sector still it is backward, and that time it was very backward. And third we come that the service sector. So 15 to 20% of India's population was engaged in service sector. Also we need to see interstate variation. So if you see here, there was a decline in the dependence of the workforce on the agriculture in Madras Presidency. Then Madras Presidency was present day Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Kerala and Karnataka, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल. तो ये सारे आप देख सकते हैं सब कोस्टल एरिया है. तो इन कोस्टल एरिया में लोग क्या हुए कि ब्रिटिशर्स के साथ जॉब में लग गए. ब्रिटिशर्स ने उनको एम्प्लॉय कर लिया अपने साथ. बहुत सारा काम होता है कोस्टल एरियाज़ में, मेंटेनेंस का, लोडिंग अनलोडिंग. तो प्राइमरी सेक्टर से लोग सर्विस सेक्टर पर शिफ्ट हो चुके थे इन कोस्टल एरियाज़ में. बट इफ़ यू कम टू द अनदर एरियाज़, इफ़ यू टॉक अबाउट राजस्थान, उड़ीसा एंड पंजाब, यहाँ पर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन द प्राइमरी सेक्टर इंक्रीज्ड. So that was the occupational structure, condition of occupation at the time of British. Now infrastructure. What do you mean by infrastructure? Infrastructure is the base of a country and it provides further pace, further speed to the growth and development of the country. So there are two infrastructure, economic and social. If we talk about economic infrastructure, so economic infrastructure is the infrastructure which helps in the economic growth and development, है ना. तो आपका अगर आप इंडस्ट्री खोलते हो कहीं भी, तो सबसे पहले आप क्या देखोगे कि वहाँ पर बिजली है या नहीं, पानी है या नहीं, रोड है या नहीं, कम्युनिकेशन टावर है या नहीं. तो ये सारे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाते हैं. फिर दूसरा है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आप क्या देखोगे कि सोसाइटी के लिए प्रॉपर हॉस्पिटल्स है या नहीं, है ना, हेल्थ फैसिलिटीज़. फिर प्रॉपर स्कूल्स कॉलेजेस है या नहीं, है ना, दैट इज़ एजुकेशन, हाउसिंग. दीज आर द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. सो व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर व्हेन वी गॉट आवर कंट्री बैक? सो अंडर द कॉलोनियल रूल बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से रोड, रेलवे, पोर्ट्स, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोस्ट एंड टेलीग्राफ अच्छे से उन्होंने डेवलप किया था.
है ना, डेवलप किया था। इसका मतलब नहीं है कि उन्होंने हमारे इंडिया के लिए अच्छा सोचा था, ये उनके खुद के ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर रहा था। टू फुलफिल देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट दे डेवलप। रेल उन्हें डेवलप क्यों की, ताकि पूरे इंडिया से वो रॉ मटेरियल इकट्ठा कर लें। रोड नेटवर्क क्यों, क्योंकि फिर वो लाकर उनको पोस्टल एरिया में डालना है, कोस्टल एरियाज़ में, पोर्ट्स पे, फिर पोर्ट से ये ब्रिटेन जाता था। तो इस वजह से रोडवेज और रेलवेज हुआ। फिर पोस्ट एंड टेलीग्राफ क्यों डेवलप किया, क्योंकि बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स ब्रिटेन के इंडिया में रहते थे। दे हैड टू कॉन्वर्सेट विद देयर फैमिलीज एंड विद देयर देयर हायर ऑफिशियल्स, सो दे रिक्वायर्ड पोस्ट एंड टेलीग्राफ, सो दे डेवलप दैट ऑल्सो. So these post and telegraph, and these were definitely railway also was introduced by the Britishers in 1850. लेकिन उनका मेन मकसद क्या था, खुद की ज़रूरतों को पूरा करना, ना कि इंडिया की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सो दैट इज़ देयर. द रोड्स वर बिल्ट फॉर मोबिलाइजिंग द आर्मी विद इन इंडिया एंड फॉर ड्रॉइंग ऑफ रॉ मटीरियल फ्रॉम द कंट्री साइड टू द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ द पोर्ट टू सेंड दिस टू इंग्लैंड और अदर फॉरेन लैंड्स. दैट यू अंडरस्टैंड? Yes. So if we talk about Indian railways, the Britishers introduced the railways in India in 1850 and that affected the structure of Indian economy. कैसे structure को करा? It enabled people to undertake long distances. Definitely it was helpful because that time we were not having proper transport facility. Bullock carts etc. was used and long period of time was taken for going one place to another. तो पहली बात तो लॉन्ग डिस्टेंस ये लोग जाने लगे. पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ऑल्सो कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर कुड बी पॉसिबल बिकॉज आपके लोकल मार्केट में तो कमर्शियल क्रॉप्स का कोई इतना यूजेज होता नहीं है, उसको आपको किसी भी तरह से सिटी में ले जाना पड़ता है और यहाँ तो ब्रिटेन ले जाना था. तो इसकी वजह से कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को भी स्पीड मिली. वॉल्यूम ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट अनडाउटेडली एक्सपांडेड. वी हैव ऑलरेडी डन कि हमारा सरप्लस जो था, फॉरेन ट्रेड हमारा सरप्लस में था क्योंकि हमारा बहुत सारा रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट किया जाता था. फिर रेलवेज वर मेनली यूज फॉर कलेक्टिंग मटेरियल फ्रॉम वेरियस प्लेसेस. ये दिस वी हैव ऑलरेडी डन. सो एक अच्छा प्रोमिनेंट कंट्रीब्यूशन अगर हम करेंगे अभी पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट तो वो ये था कि भारत में इंडियन रेलवेज का फॉर्मेशन हुआ. सो बिकॉज ऑफ दिस इट एनेबल्ड द पीपल टू अंडरटेक द लॉन्ग डिस्टेंसेस एंड एवरीथिंग वी हैव डन. नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट, आई टोल्ड यू दैट हमने अभी तक करा कि एग्रीकल्चर कैसी मिली, इंडस्ट्री कैसे मिली, फिर फॉरेन ट्रेड हमें कैसा मिला था, डेमोग्राफिक कैसी मिली थी हमें, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर हमें कैसा मिला था, है ना. अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर में एक आपके और इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे उड़ीसा और कोस्टल कैनाल्स. तो ब्रिटिशर्स ने इनलैंड वाटरवेज पे भी काम किया था लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहा. तो फिर उन्होंने जो कोस्टल उड़ीसा की जो कोस्ट कैनाल्स है उनको बंद कर दिया था क्योंकि वो घाटे में जा रही थी. तो काफ़ी काम इंफ्रास्ट्रक्चर पे ब्रिटिशर्स ने करा लेकिन दैट वाज ओनली टू मीट आउट देयर सेल्फ इंटरेस्ट. ओके, सो एट द एंड वी हैव टू इवैल्यूएट दैट व्हाट गुड एंड व्हाट बैड वाज बीइंग डन बाय द ब्रिटिशर्स. तो गुड, तो इफ़ यू टॉक अबाउट हाउ इंडियंस एंड इंडिया बेनिफिटेड फ्रॉम द ब्रिटिश रूल. कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, मैंने कहा ना इंफ्रास्ट्रक्चर में डेफिनेटली हमको कुछ फ़ायदे हुए हैं. तो रोड्स है, डेवलपमेंट ऑफ इनलैंड ट्रेड, आई टोल्ड यू दैट कोस्टल उड़ीसा कोस्टल कैनाल्स करवाया था उन्होंने. इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सटेंसिव सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, दैट वाज यूजफुल. द पोस्टल सर्विसेज थ्रू दो वाज इनएडिक्वेट एंड सर्व द इंटरेस्ट टू द ब्रिटेन. एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आज भी हम लोग मतलब ये जो लाठी चार्ज होता है ये हमारे यहाँ की देन नहीं है, हमारे भारत सरकार, हमारे इंडिया में ये नहीं हुआ करता था. तो आज भी हम वही फॉलो कर रहे हैं. इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हम आज भी ब्रिटिशर्स के टाइम का दिया हुई थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके कर रहे हैं. तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डेफिनेटली इट वाज इफेक्टिव दैट वी आर स्टिल यूजिंग. एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर विच इज़ द डिमांड nowadays. So these all were the positive points which were given by the Britishers. So in all, नेगेटिव तो आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो कुछ पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन थे दैट वी हैव डन. सो दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर. गुड डे.